اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ان سے پوچھو کیا علم رکھنے والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ آج 23 اپریل ہے۔ 23 اپریل کے حوالے سے ہم آج جو دن منا رہے ہیں ایک خصوصیت کا حامل دن ہے، ایک اہم ترین دن ہے ورلڈ بک کے نام سے، ورلڈ بک ڈے کے نام سے۔ اس پر دو طرح سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک تو علم دوستی، کتاب دوستی، کتاب کے حوالے سے۔ کتاب آپ سب کو پتہ ہے نور ہے، کتاب روشنی ہے، کتاب صورت ہے، کتاب سیرت ہے، کتاب تہذیب ہے، کتاب علم ہے، کتاب بصیرت ہے، عقل رکھنے والوں کے لیے تحفہ ہے، نعمت اعلیٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے، نعمت دل پذیر ہے۔ کتاب کی اہمیت، افادیت پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کو پورا کا پورا ادراک ہے، علم ہے، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، صاحب بصیرت علم رکھنے والوں کو، کہ کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ یہ کتاب انسان کی زندگی ہے، یہ انسان کی زندگی کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ علم والا اور بے علم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دن دو طرح سے منایا جاتا ہے، دو چیزوں سے، ایک کتاب بینی کے حوالے سے، کتاب دوستی کے حوالے سے، علم کی افادیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے۔ دوسرا اہم مسئلہ تھا کہ علم کو سرقہ کیا، چوری کیا جاتا، یعنی کہ علم کسی کا ہے، فہم کسی کا ہے، ادراک کسی کا ہے، محنت کسی کی ہے، میں نے کیا کیا، اس سے کچھ چرا کر درج کر لیا، پھر کسی دوسرے مصنف محقق سے میں نے کچھ اس سے لیا، کچھ اس سے لیا، میں نے اپنا کالم، تھیسز، مقالہ لکھ ڈالا۔ ایک چوری ہوتی ہے، ڈاکہ ہوتا ہے، راہزنی ہوتی ہے، مال کی، دولت کی، اموال کی، جانوروں کی۔ ایک علم کی چوری ہے، یہ سب سے بدترین چوری ہے کہ وہ کالم، وہ تحریر، میرا اس سے، میرا فہم سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، مگر میں اپنے نام سے منسوب کر کے اپنے آپ کو منوانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ میری اختراع ہے، یہ میری فکر ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میری تحریر ہے۔ تو اس کو، اس سرقہ کو، چوری سے بچانے کے لیے بھی دن منایا جاتا ہے۔ ایک کتاب کی اہمیت، علم کی افادیت، دوسرا اس بات کو بھی اجاگر کرنا ہے کہ یہ ڈکیتی، یہ چوری، یہ کسی کا علم چرا کر آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جبکہ آپ کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، آپ کا قد وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، آپ کی علمی بصیرت وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو اس کام کو، اس چوری کے روک تھام کے لیے بھی 23 اپریل ہے، دو طریقے سے، علم کی روشنی، اس کی افادیت، علم کا نور اور اس کی بصیرت۔ دوسرا اس بات کا روک لگانا ہے، ٹوک لگانا ہے، اس سے باز رکھنے کے لیے ہم نے اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ علم کسی کا ہے، محنت کسی کی ہے، لکھنے والا کون ہے، آپ اس کے لکھے ہوئے مواد سے، کتاب سے، کالم سے ان کی تحقیق چرا کر اپنے نام پہ منسوب کر رہے ہو، یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے۔ آج یہ دن نہیں کہ میں ان علماء، فقہاء، محدثین، علامہ الدہر والقہر، علم سے باہر لوگوں کا تذکرہ کروں کہ کن کن لوگوں نے کہاں کہاں سے یہ چوری کیا ہوا مواد اپنے نام پر شائع کر کے شیخ الاسلام ظاہر ہوئے، علامہ الدہر ظاہر ہوئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عالم دین کہلاتے ہیں اور ان کا اپنی شائع کردہ کتابوں سے مواد سارا کا سارا چوری کا ہے۔ میں نام اس لیے کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ یہ واردات بہت بڑی ہے۔
अगर अल्लाह ताला ने ईमानी कुव्वत अगर बख्शी तो मैं ज़रूर इस पर भी काम करूँगा कि किन्होंने किन से किन उलमाए अकाबरीन कराम ने जिन्होंने अपनी नामवरी के लिए, नाम कमाने के लिए वहां से चोरी शुदा मवाद को अपनी किताब में दर्ज करके अपने नाम से शय की, फिर 2700 अलकाब भी साथ जोड़ दी। ये तो हो गए उलूम दीनिया के हवाले से, यानी कि जो मदारिस अरबिया दीनिया इस्लामिया में पढ़ाते हैं उनके बारे में, उनकी रिसर्च और तहकीक क्या है। दूसरा है कि जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो एमफिल मकालाजात लिखे जाते हैं, थीसिस लिखे जाते हैं, पीएचडी के अंदर जो मकालात लिखे गए हैं या थीसिस लिखे गए हैं वो 98% चोरी शुदा। इसीलिए तो हमारे यहाँ काबिलियत आ नहीं रही, इसी वजह से तो हम दीगर अक़वाम से पीछे हैं। हमारे यहाँ रट्टा का प्रोग्राम है, रट्टा चलता है स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर, मकतब खानों के अंदर रट्टा प्रोग्राम होता है। ना समझ, ना फ़हम, ना इदराक, ना अक्ल, ना फ़हम, कुछ भी नहीं। रट्टा लगाओ और इम्तिहान में पास हो। फिर कहाँ से वो साइंसदान, वो कहाँ से मुजिद आएंगे और हमें अपनी इजाज़ात से मुस्ताफिद करेंगे? मुमकिन ही नहीं। साइंसदानों का सिलसिला बंद हो गया। 2% रियायती तौर पे दे रहा हूँ आपके डर की वजह से। इल्म उठ गया, पीछे जहालत रहे, नूर उठ गया, अंधेरा रहे। ये तमाम कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ पे ये एमफिल पीएचडीज वगैरह होते हैं, मैं साइंसी उलूम के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं उलूम इस्लामिया अरबिया दीनिया के हवाले से जितनी भी पीएचडीज हैं 2% को छोड़ के 98% ये सरका चोरी शुदा मवाद है। आज हम दिन मना रहे हैं इल्म की अफादियत का, अहमियत का, उस रोशनी का जिससे हमें अपनी जिंदगियों का तयन करना है मुआशरती तौर पे, इखलाकी तौर पे, लेकिन हम इन्हितात का शिकार हैं। हम इल्म से दूर जा रहे हैं, किताब से भाग रहे हैं, मुतालिया से भाग रहे हैं। मैं अपना मुशाहिदा भी आपके सामने पेश करता हूँ। मुझे याद है कि हमारे वालिद साहब के पास कुछ मैगज़ीन मुजल्लाजात आते थे। हम पर लाजिम था कि हम 20 सफ़ात पढ़ने, 20 सफ़ात 10 औराक कम से कम आपने पढ़ने। अखबार आती थी तो पूरी अखबार को पढ़ा जाता था, फिर वो उसको समाअत करते थे। फिर हमें अपने घर के अंदर जो मजलिस होती थी, मेरी वालदा, मेरी बहनें, मेरे भाई, वो चिराग, वो चिमनियाँ, वो मट्टी से जलने वाले लालटेन वो बुझा देते थे और मुझे कहते या मेरे छोटे भाई को कहते कि खड़े हूँ भाई, ऐसे समझें कि आप एक कब्रिस्तान वीराने में, आपको कोई समाअत नहीं कर रहा, आप तकरीर शुरू करें। जो आता है, सही आता है, गलत आता है, बोलना सीखें, आवाज़ निकालें। तो हमें जो जितना आता था, मुझे याद नहीं पड़ता कि हम उसमें किस कदर कामयाब हुए या नाकाम हुए, लेकिन ये तकरीबन हर दूसरे रोज़ इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद होता। पहले हमें नफ्सियाती तौर पे वीराने में, कब्रिस्तान में तशबीह दी जाती कि हम कब्रें हैं। आप ये तसव्वुर कर लो, आप डरो नहीं, खौफ नहीं करो। दूसरा, वो एक सवाल और जवाब की नशिस्त रखते थे उसी फोरम, उसी घर, उसी चूल्हे के ऊपर जहाँ पे मेरी वालदा सालन बनाती थी, रोटियां पकाती थी, उसी के इर्द गिर्द हम बैठे। तो वो कहते कि हाँ जी, ये सवाल का सिलसिला यहाँ से शुरू हो, यानी सीधे हाथ से जो पहला आदमी बैठा है, तो हम कोशिश करते थे कि हम आखिर में बैठे। सवाल उठाना है, कोई सवाल उठाए, सवाल उठाना सीखें आप। हर बात पे सवाल उठाएं। अगर आपने जिंदगी के रमूज को समझना है चलना है, तो आपको सवाल उठाना चाहिए। अपने बच्चों को भी आदत डालिए कि वो सवाल उठाएं।
आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं? 23 अप्रैल को हम किताबों का दिन मना रहे हैं, रोशनी का दिन मना रहे हैं, बसीरत का दिन मना रहे हैं, इल्म का दिन मना रहे हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की को दाद जाती है, वो काबिल तकरीम इकदाम है जो उन्होंने इस डे को मख्तस किया है किताब के साथ और नकली उलूम के साथ, जो कॉपी राइट्स के मामलात होते हैं, दूसरों का मवाद चोरी करके अपने नाम से शेयर करना। ये एक बहुत बीमारी है, डकैती है, चोरी है, बदअखलाकी है, लेकिन ये आम सरेआम होती है और इसमें बड़े बड़े नामी गिरामी आलिम दीन, मुहद्दिसीन, बड़े बड़े अल्लामा फहामा, बड़े बड़े इल्म के दरिया और समंदर इसमें मुलव्वस हैं। बहरहाल आज हम 23 अप्रैल में हैं और आज ये दिन मनाया जा रहा है। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि हम किताब से इतना दूर क्यों हैं, हम इल्म से इतना दूर क्यों हैं, उसके क्या असबाब हैं। ये जो दिन है 1995 में इसकी बुनियाद रखी गई। आज के दिन किताब की अगर बात कहें तो ये हमारी साथी है, हमारा गम बांटती है, हमारा दुख बांटती है, हमारी शख्सियत में निखार पैदा करती है, हुस्न पैदा करती है, किरदार पैदा करती है, गुफ्तार पैदा करती है, अफकार पैदा करती है। अगर हम रोजाना 30 मिनट भी किताब पढ़ लें तो उसमें जहनी तनाव में जो कमी होगी वो 68% हमारा जहनी तनाव कम हो जाएगा। तफक्कुरात से हम जान छूट जाएगी हमारी। कितने फीसद? 68%। इससे सोचने की सलाहियत बढ़ती है। हम अपने अक्ल को अगर इस्तेमाल में लाएं, अगर ला सकते हूं तो ये हमें तहकीकार बनाती है, तख्लीकार बनाती है, दूसरों के जज्बात को, दूसरों की जबान को, दूसरों के एहसासात को समझने में मुआविन मददगार साबित होती। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल बिलउमूम, वैसे तो पूरी कौम, हम इससे नाबल्द है। मुतालिया से हम भागते हैं, पढ़ने से हम जी चुराते हैं। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है जो बड़े बड़े मंसूबों पे रहे हैं, वो प्रोफेसर हूँ, वो लेक्चरार हूँ, वो मुदर्रिस हूँ, वकला हूँ। वकला अपनी कानून की किताबें नहीं पढ़ते, जजों के सामने, छोटी अदालतों में जजों के सामने जाके बड़े बेइज्जत होते हैं। बाज़ दफ़ा जब कलमी FIR लिखी जाती थी तो मुझे याद है कि वकला को FIR पढ़ने नहीं आती थी। कुछ जज साहब ने पढ़ दी, कुछ वकील साहब ने पढ़ दी। अपनी लॉ की किताबें नहीं पढ़ते गालिब अक्सरियत वकला की। प्रोफेसर की गालिब अक्सरियत अपने सब्जेक्ट को तैयारी के साथ क्लासरूम में नहीं आती। मुदर्रिसीन मदारिस दीनिया, अरबिया, इस्लामिया, उनको पता है, रटी रटाई बात है कि मैंने बलूगुल मराम, मन्ना दिल्लतुल अहकाम मैंने पढ़ानी है, कल भी पढ़ाई थी वो। मैंने मिशकात शरीफ पढ़ानी है, मैंने हिदाया पढ़ाना है, मैंने कंस पढ़ानी है, मैंने कदूरी पढ़ानी है, मैंने दुर्र मुख्तार पढ़ानी है, मैंने नाहव पढ़वानी है, इल्म सर्फ पढ़ानी है। वो रटा रटाया जो असलूब तरीक है, जो उस्तादों से हमने सीखा, उसी तरीके से हम पढ़ा। मैंने निसाई शरीफ पढ़ानी है, मैंने तफसीर जलालैन पढ़ानी है, मैंने इब्ने कसीर को पढ़ाना है या पढ़ना है। कोई तैयारी करके 98% इनको भी लगा लीजिए कि ये भी 98% अपनी तैयारी के साथ नहीं आते, क्योंकि तालबात ने सवाल उठाना नहीं है, हमें तैयारी करने की जरूरत क्या है। ये अलमिया है, कौमी अलमिया। दीगर जहां इश्यूज हैं, पाकिस्तान में मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, मामलात हैं, मुआशियात की, मईशत की, तिजारत की, वहां पे ये इल्मी जो बदनीति है, ये जो गवर्नमेंट स्कूल है, ये क्यों नाकाम हुए, ये पैस की तरफ क्यों ट्रांसफर हुए, ये प्राइवेट कंपनियों के सपुर्द क्यों हुई तालीम। अब वैसे कमर्शियल होगी तालीम, लेकिन इसके असबाब व इल्लत में असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है। वो खा प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, असातिज़ा तैयारी से नहीं आते, क्योंकि तालिब इल्मों ने सवाल ही नहीं उठाना।
ख़ास तौर पे मदारिस अरबिया में सवाल उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं कर सकता। ये मेरा मुशाहिदा है, तजर्बा है।